Namaste everyone. Welcome to Shivoham Yoga. Let's walk together to find inner peace through yoga. A path to self-discovery. So today's practice will give you a stress-free mind. So if you want to have a very beautiful mindset, let's practice together. Grab your mat and let's begin with us. Let's start with warm up. 1 feet distance between your feet. और अपने फिंगर्स को क्लैस्प करना है and stretch in front. Stretch as much as you can and then from inside out and now take your hands onto your head. अभी अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें. Now from outside in and then stretch in the same direction again and from inside out again. Now bend your body towards right side. Now left side. Stay and breathe normal. Right side and try to stretch your side as much as you can. Left side and breathe. Do not hold your breath. Now twist your body towards right side and exhale, go towards left side and come back in the center towards right side. Breathe normal towards left side and exhale. Relax your hands. Now do shoulder movements from inside out. Breathe normal and then in other direction. ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को मसल को मूव करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आपने क्लॉकवाइज अगर मूव किया है तो एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर मूव करें. नाउ वी विल डू कैट एंड काउ स्ट्रेच. सो दिस इज जस्ट टू गिव अ वेरी गुड स्ट्रेच टू योर स्पाइन. इनहेल and arch your back. Now exhaling, you have to slouch your back or we can say round your back. Now round your back while exhaling and then relax and arch your back while inhaling and then again exhale and give a nice stretch to your spine like a cow. So ये stretch देने के बाद अपने spine को अच्छे से will go into other postures. So why we are giving very good stretch to our spine? Because our spine is connected to our mind. तो हमारी बॉडी में जो भी सिग्नल्स जाते हैं माइंड से वो स्पाइन के थ्रू जाते हैं. So we need to take care of our spine so much. So try and give a very good stretch to your spine every day. So now exhale and round your back and relax. Relax into child posture. So this is child pose. Relax as much as you can. Breathe and exhale into this posture deeply. So if you'll exhale properly, you'll be able to relax your body so much. So try to exhale as much as you can and relax all your muscles. अपनी सारी मसल्स को आपको रिलैक्स करना है तो अच्छे से एक्सेल करें. जितना अच्छे से एक्सेल करेंगे उतना ही बॉडी की मसल्स रिलैक्स होंगी. नाउ कम ऑन टू योर स्टमक एंड वी विल परफॉर्म भुजंग आसन. और भुजंग आसन कैसे परफॉर्म करना है आप मेरे चैनल पे जाकर पर्टिकुलर भुजंग आसन की जो वीडियो है वो देख सकते हैं. And I will link that video in my description box.
Now just see how I am performing this Bhujangasana and be in this posture for at least 20 seconds. जितना आप posture में रहेंगे उतना ही अच्छा आपकी body को stretch मिलेगा. So we are getting very good stretch on our back. Try to stretch as much as you can and be there. Breathe normal. Breathe normal. Try to exhale as much as you can so that your body is relaxed in that posture. अपनी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए एक्सेल करते रहें posture में रह के. अभी रिलैक्स करेंगे एंड वी विल गो इनटू सुपरमैन पोज. इसको हम विपरीत शलभ आसन भी बोलते हैं. इस पोस्चर में अपनी बॉडी को हवा में रखना है, अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को, और पूरी बॉडी का जो वेट है वो सिर्फ हमारे नेवल रीजन पे होना चाहिए. नाउ वी विल गो इनटू धनुरासन. अपने हाथों से अपने पैरों को, एंकल्स को ग्रैब करके, इसमें भी हमारा पूरी बॉडी का वेट जो है वो हमारी नेवल पे है. एंड ट्राई टू ब्रीथ नॉर्मल इन दिस पोस्चर एंड ट्राई टू एक्सेल मोर. जितना एक्सेल करेंगे उतना ही पोस्चर में रिलैक्स हो पाएंगे और उतना ही मसल्स हमारी ज़्यादा स्ट्रेच हो पाएगी. तो अगर पोस्चर्स को इम्प्रूव करना है तो आपको एक्सेल करना है पोस्चर में रहकर और रिलैक्स करना है. तो इस पोस्चर में आपको इस पोस्चर में रहकर रिलैक्स करना है. नाउ अगेन रिलैक्स एंड लाई डाउन ऑन टू योर बैक. तो अभी हम अपने बैक पे लाई डाउन करेंगे और बाकी के पोस्चर्स परफॉर्म करेंगे जिनसे हमारे स्ट्रेस को रिलीफ मिलेगा. एंड दिस इज़ वेरी गुड पोस्चर टू रिलीव योर स्ट्रेस. तो ये पोस्चर में हमारे पैरों को 90 डिग्री एंगल पे रखना है. 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे. इस पोस्चर को विपरीत करनी बोलते हैं. और नेक्स्ट इज ऑल्सो विपरीत करनी. इसको जो लोग ये पोस्चर नहीं परफॉर्म कर सकते हैं वो उस पोस्चर को परफॉर्म करेंगे 90 डिग्री एंगल वाले को. और हम इस पोस्चर में अपने पूरे लेग्स को अपर डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और स्ट्रेट रखेंगे और अपने शोल्डर्स पे सारा वेट लेकर आएंगे. नेक इज रिलैक्स्ड. नेक बिल्कुल भी प्रेशराइज्ड नहीं है. तो नेक को रिलैक्स रखते हुए अभी हम जाएंगे हल आसन में. तो ये है हमारा हल आसन. इसमें अपने पैरों को सर के पीछे की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से और इस पोस्चर में रिलैक्स करेंगे 20 सेकंड्स तक. तो अपने पोस्चर से रिलैक्स करने के बाद स्लोली पोस्चर से बाहर आएंगे और पश्चिम उत्तानासन में जाएंगे. दिस इज पश्चिम उत्तानासन. इस पोस्चर में जाने के बाद इस पोस्चर में भी स्टे करेंगे few seconds and then we'll come back and we'll perform अर्ध मत्स्येंद्रासन. इसको हम हाफ फिश पोज भी बोलते हैं. तो इसको कैसे परफॉर्म करना है, आपका जो लेफ्ट फुट है वो राइट हिप के अंडर है और आपका जो राइट फिट है वो क्रॉस किया हुआ है आपके लेफ्ट नी को. तो ऑपोजिट हैंड से अपने लेग के शिन बोन को पकड़ना है और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है जितना आप ट्विस्ट कर सकें. ट्राई टू ट्विस्ट योर बॉडी एज मच एज यू कैन and very slowly come out of the asana and try to breathe in this posture normal. Do not hold your breath. Try to exhale as much as you can and relax your body and very slowly come out of the asana. And now we will go into Parvatasana. तो इसको माउंटेन पोज भी बोलते हैं. तो इस पोस्चर को हम परफॉर्म करते हुए ब्रीथ करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ रखेंगे और एक्सेल करेंगे और अपनी बॉडी को अपर डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे. जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपर डायरेक्शन में उतना स्ट्रेच करेंगे. अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे. एंड स्लोली वी विल रिलैक्स एंड देन
we will go into गरुण आसन। तो गरुण आसन में हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, अपने दोनों नीज को इनलाइन रखना है और अपने दोनों हैंड्स को गरुण की तरह रैप करना है। तो अपना राइट हैंड रैप करना है अराउंड द लेफ्ट हैंड and be in this posture and try to give very nice stretch to your shoulders and breathe normal. This asana will give you a very good mindset, a very calm and meditative mind. Now we will repeat with the opposite legs. अभी हम राइट हैंड को स्टेबल रखेंगे और लेफ्ट हैंड को रैप करेंगे और अभी लेफ्ट लेग को ऊपर रखेंगे और राइट लेग को नीचे। इस तरह से परफॉर्म करेंगे और अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे पॉस्चर में। जितना बॉडी को रिलैक्स करेंगे उतना ही पॉस्चर इम्प्रूव होगा। तो अपने पॉस्चर को अगर इम्प्रूव करना है तो ब्रीदिंग पे बहुत ध्यान लेकर जाना है और ब्रेथ पे हमेशा ध्यान रखना है। ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न। आर यू ब्रीदिंग राइट और नॉट? तो अगर आप इनहेल करेंगे तो आपका स्टमक बाहर आएगा और एक्सहेल करते टाइम आपका स्टमक अंदर जाएगा। नाउ वी विल मेडिटेट इनटू पद्मासन। पद्मासन में हम आदि मुद्रा में अपने हाथों को आदि मुद्रा में रखेंगे। तो आदि मुद्रा कैसे? अपने थंब को अपने चारों फिंगर से बंद करना है और इस मुद्रा में रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है। ये मुद्रा हमारे माइंड में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो उसको रिमूव करता है। तो इस मुद्रा में अगर हम परफॉर्म करेंगे तो प्राणा हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फ्लो होगा एंड जो भी स्ट्रेस है हमको वो उससे रिलीफ होगा। सो ट्राई टू ब्रीथ नॉर्मल इन दिस पॉस्चर, इन दिस मुद्रा एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड ट्राई टू मेडिटेट फॉर सम टाइम। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं आप इनको परफॉर्म करें और 2 से 3 बार हर एक आसन को रिपीट करें so that you can get good benefits out of all the postures and these postures will relieve your stress. Definitely do perform and let me know in the comment box. And if you like this video, hit the like button and subscribe my channel for the next coming videos. And you can contact me for the corporate yoga sessions. Thank you so much. Namaste.